Hello students, as we know in human the blood plays a very vital role. So today we are going to start blood. Blood is a liquid connective tissue, but it is not considered as a true connective tissue. It is called as false connective tissue. तो चलिए देखते हैं कि इसे false connective tissue क्यों कहते हैं। क्योंकि ब्लड जो सेल्स होती हैं ये ना तो बेटा फाइबर्स सिंथेसाइज करती हैं और ना ही ये अपने मैट्रिक्स को सिंथेसाइज करती है और ना ही इनमें डिवीजन की पावर होती है, इसीलिए हम इसे फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। यदि हम ब्लड के पीएच की बात करें तो बेटा ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है, दैट इज 7.4। दूसरा, यदि हम ब्लड के वॉल्यूम की बात करें तो बेटा ब्लड का जो वॉल्यूम होता है हमारे शरीर में वो अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर होता है, जो कि टोटल बॉडी वेट का 7 to 8% होता है। ब्लड का जो कंपोजिशन है इसमें दो पार्ट है बेटा, एक है प्लाज्मा और दूसरा ब्लड कंपोनेंट्स या जिसे आप ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, विच इंक्लूड्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। So let us start with blood plasma. Blood plasma constitute a 55% part of the total blood. And in this plasma, 90 to 92% part is formed by water and remaining it is formed by solid part. That is 8 to 10%. In this solid part, organic and inorganic both substances are present, and 7 to 9% is formed by organic part, in which 6 to 7% part is formed by protein, and these are called as the plasma proteins. All the plasma proteins are synthesized by liver except gamma globulin. There are 4 types of plasma proteins: albumin, globulin, prothrombin and fibrinogen. Out of these, prothrombin and fibrinogen are smallest in number, that is 0.3%, and fibrinogen is largest in size. But the albumin, which is maximum in quantity or maximum in number, that is 4%, but smaller in size. If we talk about the function of albumin, the function of albumin is to maintain the blood colloidal osmotic pressure. And in our blood, the blood colloidal osmotic pressure is 30 millimeter Hg. Both prothrombin and fibrinogen helps in blood clotting. And the globulin protein are of 3 types: alpha, beta and gamma. Alpha protein help in the transport of copper ions. Its example is ceruloplasmin. The beta globulin protein help in the transport of iron. Its example is transferrin. The gamma globulin, which is also called as immunoglobulins, produces antibodies, and by these antibody production they help in destroying the toxic substances, bacteria and viruses from our blood stream. So it helps in immunity. So this is all about the plasma. चलिए स्टार्ट करते हैं आरबीसी से। आरबीसी is also called as erythrocyte. Human RBC is biconcave, circular and non-nucleated. The biconcave surface increases its surface area, and the absence of nucleus help to accommodate more amount of hemoglobin. बेटा एक हीमोग्लोबिन एक आरबीसी में लगभग 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। सो न्यूक्लियस के एब्सेंस के कारण ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन जो हैं वो आरबीसी में एकोमोडेट हो पाते हैं। हम इस हीमोग्लोबिन के बारे में भी सेपरेटली बात करेंगे, इसके कंपोजिशन के बारे में। ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है रेड कलर का, जो कि आरबीसी को रेड कलर इंपार्ट करता है। एक खास बात और याद रखिएगा यहां पर कि जो आरबीसी होती है जब ये सिंगल होती है तो बेटा ये पेल कलर की दिखाई देती है, लेकिन
पता है पेल कलर क्यों होता है? क्योंकि इनके प्लाज्मा का कलर पेल होता है, और पेल येलो कलर जो होता है प्लाज्मा का, इट इज ड्यू टू बिलीरुबिन। बिलीरुबिन एक पिगमेंट है बेटा। लेकिन जब आरबीसी ग्रुप में होती हैं तो बेटा ये आरबीसी रेड कलर की दिखाई देती है। अगर हम आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो बेटा इसे डोनल्स मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये डोनल मेम्ब्रेन हाईली परमेबल होती है क्लोराइड आयंस और बाइकार्बोनेट के लिए, लेकिन ये सोडियम और पोटेशियम के लिए परमेबल नहीं होती। यदि हम आरबीसी के साइटोस्केलेटल की बात करें तो बेटा ये एक स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है जिसे हम स्ट्रोमेटिन कहते हैं, के द्वारा बनता है। और ये जो स्ट्रोमेटिन प्रोटीन होती है ये स्पॉन्जी नेचर की होती है, जिसके कारण आरबीसी जो है वो 7.5 म्यू साइज की होने के बावजूद भी लगभग आपके अपने साइज से छोटी डायमीटर वाली जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, लगभग यदि डायमीटर इसका 5 माइक्रोन भी है तो भी आरबीसी आसानी से इन ब्लड कैपिलरी से पास हो सकती है। ऐसा केवल और केवल स्ट्रोमेटिन प्रोटीन के कारण होता है। दूसरी बात, आरबीसी जो होती हैं, इन आरबीसी की सरफेस पर बेटा आपके ब्लड ग्रुप एंटीजेंस पाए जाते हैं, और इन ब्लड ग्रुप एंटीजेंस के अलावा आपके आरएच एंटीजन भी ब्लड में इन आरबीसी की सरफेस पर होते हैं। ओके, एक खास बात और, न्यूक्लियस के साथ साथ बेटा सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स इंक्लूडिंग माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एब्सेंट इन आरबीसी। इसीलिए बेटा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता और हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स साइकिल होती है, इसीलिए आरबीसी में क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं और केवल ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स पाए जाते हैं। और बेटा माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस एब्सेंट होने के कारण आपके आरबीसी में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। चलिए अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के कंपोजिशन की। बेटा जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट। एक हीम विच कॉन्स्टिट्यूट 5% पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन and 95% part is made up of globin protein, and this globin protein consists of 4 polypeptide chains. Each globin protein consists of 4 polypeptide chains: alpha, beta, delta and gamma, जिसमें से बेटा अल्फा जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं ये 141 अमीनो एसिड से बनती हैं, और बाकी जितनी भी आपके पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ 146 अमीनो एसिड्स। ठीक है। और बेटा जो हीम होता है, हीम जो पार्ट है आरबीसी का, इसमें आयरन होता है फेरस स्टेट में, और उसके चारों ओर पोरफायरिन रिंग होती है जिससे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है। चलिए, यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, तो ह्यूमन में ये एक एवरेज 120 डेज होता है बेटा इसका लाइफ स्पैन। लेकिन यदि हम आरबीसी का काउंट पूछें तो बेटा ये फीमेल में 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होता है, और मेल में इट इज 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। बेटा जो शेप होता है आरबीसी का, जैसा अभी हमने सर्कुलर कहा था, अगर इसके शेप में किसी भी प्रकार का चेंज होता है तो इसे पॉइक्लोसाइटोसिस कहते हैं। और यदि बेटा आरबीसी का जो साइज है जो कि 7.5 माइक्रोन होता है, यदि इसमें किसी प्रकार का चेंज हो साइज में आरबीसी के, तो इसे एनाइसोसाइटोसिस कहते हैं। यदि साइज के बेसिस पर देखें तो बेटा पूरे एनिमल किंगडम में लार्जेस्ट आरबीसी का साइज एक एम्फीबिया है जिसका नाम है एम्फ्यूमा, में होता है 60 से लेकर 80 माइक्रोन साइज। लेकिन बेटा मैमल्स में लार्जेस्ट आरबीसी एलिफेंट में होती है 9.4 म्यू, और बेटा 1.5 म्यू साइज की आरबीसी मस्क डियर में पाई जाती है, जो कि स्मॉलेस्ट आरबीसी कहलाती है
आपके मैमल्स में। यदि अब हम साइज की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा बेटा, कई ऐसे विटामिन्स हैं, कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी कमी से इनके साइज में हम चेंज देख सकते हैं, आरबीसी के साइज में चेंज देखने को मिलता है। और बेटा आरबीसी यदि डिस्ट्रॉय हो जाती है लार्ज अमाउंट में, यदि इनका डिस्ट्रक्शन होता है और इनकी संख्या में कमी आती है तो इस कंडीशन को आप एनीमिया कहते हैं। तो एनीमिया 3 प्रकार का होता है बेटा, एक होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, एक होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, एक होता है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। तो सबसे पहले मैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया की बात करता हूं। मैक्रोसाइटिक एनीमिया बेटा विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होता है, जिसके कारण आरबीसी इमैच्योर रह जाती हैं और आरबीसी का साइज एनलार्ज हो जाता है, और एनलार्ज आरबीसी को मैक्रोसाइटिक आरबीसी कहते हैं। और बेटा इस प्रकार की आरबीसी स्प्लीन में डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, स्प्लीन के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। इस प्रकार के एनीमिया को क्या कहेंगे? मैक्रोसाइटिक एनीमिया और पर्निशियस एनीमिया। लेकिन किसी भी पर्सन में यदि आयरन की डिफिशियंसी हो जाए तो बेटा आयरन की डिफिशियंसी से आरबीसी का साइज छोटा हो जाता है, स्मॉल। इसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति में सीवियर ब्लड लॉस हो जाए, मोर अमाउंट ऑफ ब्लड इज लॉस्ट फ्रॉम हिज बॉडी, देन सच टाइप ऑफ एनीमिया इज कॉल्ड एज नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। यदि अब हम बेटा फॉर्मेशन की बात करें आरबीसी की, तो बेटा फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोइसिस। और बेटा इस आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए एक हार्मोन रिक्वायर्ड होता है जिसे आप इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहते हैं, जो मेनली किडनी से सिंथेसाइज होता है, बट इन स्मॉल अमाउंट इट इज आल्सो सिंथेसाइज फ्रॉम लीवर। द मदर सेल्स विच प्रोड्यूसेस आरबीसी are called as erythroblast cells, and these erythroblast cells are present in red bone marrow, and this red bone marrow is present in spongy bones in adult। ये खास बात ध्यान रखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है? स्पॉन्जी बोन्स। और बेटा स्पॉन्जी बोन्स किसे कहते हैं? लॉन्ग बोन्स के एंड्स को कहते हैं। तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है? एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। एडल्ट में कभी भी लॉन्ग बोन्स में आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होता। रिमेंबर इट। नाउ इफ द आरबीसी डिस्ट्रॉयज, इट इज डिस्ट्रॉयड बाय स्प्लीन, हैंस स्प्लीन इज कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। लेकिन बेटा यहां पर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन भी होता है और यहां पर आरबीसी का स्टोरेज भी होता है, इसीलिए इसे ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहते हैं। किसे? स्प्लीन को। जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं आरबीसी की, तो बेटा सबसे पहले आरबीसी का फॉर्मेशन हमारे शरीर में कहां होता है? तो आप कहोगे यॉर्क सैक में। बेटा इसका सीक्वेंस नीट में 2 बार रिपीट हो चुका है, लेटेस्ट। सबसे पहले आरबीसी एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहां से आपके सिंथेसाइज होती है बेटा? यॉर्क सैक में। और यॉर्क सैक के बाद प्लेसेंटा और थाइमस में। उसके बाद अर्ली 1 to 2 मंथ में स्प्लीन में। और बेटा आप उसके बाद 2 मंथ से लेकर आपके 5th मंथ तक आरबीसी आर सिंथेसाइज्ड इन लीवर, एंड देयर आफ्टर 5th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टिल एडल्ट, एंड ड्यूरिंग एडल्ट स्टेज इट इज सिंथेसाइज्ड इन रेड बोन मैरो। ओके, दिस इज ऑल अबाउट आरबीसी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट WBC। बेटा WBC को ही ल्यूकोसाइट कहते हैं। नॉर्मली ह्यूमन ब्लड में 6000 से लेकर 8000 मिलीमीटर पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड इनका नॉर्मल काउंट होता है। यदि इनका काउंट 1 लाख हो जाए बेटा, तो इस कंडीशन को ल्यूकीमिया कहते हैं। 1 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। यदि हम WBC को क्लासिफाई करें तो बेटा WBC 2 प्रकार की होती हैं। एक जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं उन्हें ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, एंड दोज इन विच द granules are absent it is called as agranulocyte. Here
It is agranulocyte. Okay. Agranulocyte are of two types. One is monocyte and another is lymphocyte. Okay. Monocyte and lymphocyte. And the granulocyte are of three types. One is neutrophils, basophils, and eosinophils. It is also called as acidophils. Eosinophils is also called as acidophils. Another is basophils and neutrophils. These are called as granulocyte, WBC. The process of formation of WBC is called as leukocytosis. If there is a decrease in WBC count, it is called as leukocytopenia, like in typhoid and AIDS. बेटा यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखना कि जब भी इन्फेक्शन होता है हमारे शरीर में तो उस दौरान हमेशा आरबीसी का जो काउंट होता है डब्ल्यूबीसी का जो काउंट होता है वो डिक्रीज होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ता है। लेकिन जब भी एड्स या टाइफाइड होता है तो डब्ल्यूबीसी का काउंट डिक्रीज होता है, लेकिन इन्फेक्शन होने पर हमेशा डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ता है। ठीक है, अब हम इनको कंपेयर करते हैं बेटा। ये 5 प्रकार के जो डब्ल्यूबीसी हैं, यदि हम डब्ल्यूबीसी के काउंट की बात करें बेटा नंबर की, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट जो होती है डब्ल्यूबीसी की वो होती है बेटा न्यूट्रोफिल्स की, दैट इज 65%, एंड लीस्ट नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी आर बेसोफिल्स, दैट इज 0.5 to 1%। तो बेटा ये काउंट आपको याद रखने हैं, सारे परसेंटेज आपको याद रखने हैं, ये सब एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। दूसरा आपको याद रखना है बेटा कि आपके जो न्यूक्लियस है इन डब्ल्यूबीसी का, उनमें न्यूक्लियस का शेप कैसा है। उस न्यूक्लियस में जैसे कि लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो स्लाइटली एनलार्ज्ड होता है और इसका जो शेप है वो राउंडेड होता है। लेकिन बेटा जो मोनोसाइट्स होते हैं उसका न्यूक्लियस किडनी शेप्ड होता है। इओसिनोफिल जिसे एसिडोफिल्स भी कहते हैं, इसका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है बेटा। और बेसोफिल्स जो हैं इनके न्यूक्लियस में ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, या ये एस शेप्ड अपीयरेंस शो करता है न्यूक्लियस ऑफ बेसोफिल सेल्स। लेकिन न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है बेटा ये मल्टी लोब्ड होता है, इसमें 4 से लेकर 5 लोब पाए जाते हैं बेटा। अब चलिए अब हम इनके फंक्शन की बात करते हैं बेटा। ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं और जो मोनोसाइट्स हैं, दे बोथ आर फैगोसाइटिक इन नेचर, दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर, बट द मोनोसाइट्स सेल्स आर लार्जर इन शेप, लार्जर इन साइज में ये बड़े होते हैं बेटा, इसीलिए इसको मैक्रोपुलिसमैन कहते हैं, मैक्रोपुलिसमैन, एज इट इज फैगोसाइटिक इन नेचर। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं कि इओसिनोफिल्स का काम क्या है बेटा। जब भी हमारे शरीर में पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है जैसे एस्केरियोसिस, टीनियसिस या हे फीवर एटसेट्रा, या पैरासिटिक इन्फेक्शन के साथ साथ यदि किसी प्रकार के एलर्जिक डिसऑर्डर है तो उस दौरान इओसिनोफिल का काउंट हमारे शरीर में बढ़ जाता है, हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, इसे इओसिनोफिलिया कहते हैं बेटा। बेसोफिल सेल्स आर सिमिलर इन फंक्शन टू दैट ऑफ mast cells of connective tissue. They also secrete histamine, heparin and serotonin. So पैरासिटिक इन्फेक्शन और एलर्जिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट में कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बेटा? इओसिनोफिल। बेसोफिल्स क्या रिलीज करते हैं? हिस्टामिन, हिस्टामिन एंड हेपेरिन. Heparin is act as anticoagulant substance. Neutrophils and monocyte cells are phagocytic in nature. Now, what about the lymphocytes? Beta, lymphocytes are present in lymph organs like lymph nodes, spleen, thymus, tonsils, Peyer's patches, and bone marrow. What is the function of these lymphocytes? These lymphocytes are of two types. One is B lymphocytes, another is T lymphocytes. These B and T lymphocyte cells basically provide immunity. B lymphocyte cells produce antibodies and T lymphocytes directly kills the infected body cells and provide immunity to the body. यदि आपसे कोई पूछे कि बेटा लाइफ स्पैन कितना होगा WBC का, तो आप बताएंगे from few hours to few days.
बेटा लास्ट ब्लड का कंपोनेंट है प्लेटलेट्स। ये जो प्लेटलेट्स होते हैं इनके काउंट हमारे ब्लड में 1.5 to 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं। इनका जो लाइफ स्पैन होता है बेटा ये 2 से 4 दिन का होता है और साइज लगभग 2 to 3 माइक्रोन होते हैं साइज में। बेटा प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट। लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। और बेटा बोन मैरो में जिन सेल से प्रोड्यूस होते हैं, जिन मदर सेल से, उनको मेगा कैरियोब्लास्ट सेल्स कहते हैं, जो डिफ्रेंशिएट होकर मेगा कैरियोसाइट कहलाते हैं। और बेटा ये जो मेगा कैरियोसाइट सेल्स होते हैं इनके फ्रेगमेंट से एक मेगा कैरियोसाइट सेल्स के से 1000 आपके फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं एक मेगा कैरियोसाइट से, मतलब कि 1000 प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है इन मेगा कैरियोसाइट सेल से। बेटा आरबीसी की तरह प्लेटलेट्स भी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन ये बाई कॉन्वेक्स और ओवल शेप्ड होते हैं, डिस्क लाइक इन शेप। फ्रॉग में बेटा इन्हीं प्लेटलेट्स को स्पिंडल सेल्स कहते हैं और ह्यूमन में इन्हीं को बेटा थ्रोम्बोसाइट सेल्स कहते हैं। ठीक है बेटा, इनका मेन काम प्लेटलेट्स का ब्लड क्लॉटिंग के दौरान जब ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं तो जो डैमेज्ड टिश्यूज होते हैं उनके साथ ये क्लम्प करती हैं, अटैच होती हैं और अटैच होने के बाद एक स्पेसिफिक क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करते हैं जो कि बेटा जरूरी होता है क्लॉटिंग के लिए, जिसे थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन के फॉर्मेशन में मदद करती हैं बेटा, ये इनका फंक्शन है बेसिकली, इट हेल्प इन क्लॉटिंग। तो आप एक वर्ड याद रखिएगा, अभी हम क्लॉटिंग आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। दूसरा बेटा, यदि प्लेटलेट की संख्या में यदि कमी आए तो इसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। लेकिन यदि बेटा ये 40,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड हो जाए, ब्लड में 1.5 लाख से 3.5 लाख के बजाय केवल कितनी रह जाए बेटा, 40,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, तो बेटा इसे क्रिटिकल काउंट कहते हैं। और इस दौरान ऐसे व्यक्ति के बॉडी में रेड या पिंक कलर के रैशेज अपीयर हो जाते हैं स्किन पर, और इसी डिसीज को बेटा परप्यूरा डिसीज कहते हैं। तो परप्यूरा डिसीज किसकी कमी से होते हैं बेटा, प्लेटलेट्स के। जैसे कि बेटा डेंगू में प्लेटलेट्स काउंट क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। चलिए बेटा अब देखते हैं हाउ द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। Regarding the clotting of blood, the most accepted theory is cascade theory, which was given by Macfarlane and co-workers. For blood clotting, there are 13 clotting factors, and most of the clotting factors are synthesized from liver, except calcium, which is taken from the food, which comes from the source of food. The blood clotting involves the following 3 steps. First is the formation of thrombokinase or formation of thromboplastin. Second is the conversion of prothrombin into thrombin. And third and the final step in the clotting of blood is the conversion of fibrinogen into fibrin. When the blood oozes out of a cut, it sets into a gel within a few minutes. This is called as coagulation. Coagulation is brought about by hydrolysis of soluble fibrinogen of plasma to insoluble fibrin. This is catalyzed by an enzyme called thrombin. This fibrin precipitates as a network of fiber. This network traps many blood cells, particularly RBC, to form a red solid mass called the blood clot. The blood clot seals the wound in the vessels to stop the bleeding. The straw-colored fluid let after clotting of blood is called as serum. So serum क्या है बेटा, तो प्लाज्मा में से यदि प्रोटीन और जो फाइब्रोनोजेंस हैं बेटा, अगर हम इनको रिमूव कर दें तो जो रिमेनिंग पार्ट है प्लाज्मा का, दैट इज कॉल्ड एज सीरम। द सीरम कैन नॉट बी कोएगुलेटेड एज इट लैक्स फाइब्रोनोजन, क्योंकि इसमें फाइब्रोनोजन नहीं होता, इसलिए बेटा सीरम क्लॉट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले स्टेप से लेते हैं बेटा यहां से। यहां देखिए, जो डैमेज्ड ब्लड वेसल्स होती है, जो इंजर्ड ब्लड वेसल्स है,
उनसे बेटा रिलीज होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सो और एक एंडो। एक्सो मतलब बाहर और एंडो मतलब अंदर। इसका मतलब क्या है, जरा यहां देखें। यहां लिखा हुआ है बेटा कि इंजर्ड या डैमेज्ड ब्लड वेसल से प्लेटलेट्स क्लम्प्ड होते हैं बेटा। इसका मतलब प्लेटलेट्स कहाँ होते हैं बेटा, ब्लड प्लाज्मा में। जब ब्लड प्लाज्मा में प्लेटलेट्स फ्लो करते हैं और जब ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है तो ये प्लेटलेट्स इन ब्लड वेसल की वॉल से अटैच होकर, क्लम्प होकर सबसे पहले ब्लड के लॉस को प्रिवेंट करते हैं। मतलब कि एक प्लग का फॉर्मेशन होता है जिसको प्लेटलेट प्लग कहते हैं। कहां पर फॉर्मेशन होता है इसका, ब्लड वेसल्स की वॉल पर, जिससे कि ब्लड का लॉस प्रिवेंट हो जाता है। और साथ ही साथ इसके अटैच होने से एक स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं बेटा इन डैमेज टिश्यूज से, जिसको आप थ्रोम्बोप्लास्टिन कह रहे हैं। इसे एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। और बेटा ये जो डैमेज ब्लड वेसल्स है, इसकी वॉल से, डैमेज टिश्यू से भी एक स्पेसिफिक कोएगुलेशन प्रोमोटिंग सब्सटेंस रिलीज होता है, कोएगुलेशन प्रोमोटिंग सब्सटेंस, विच इज कॉल्ड एज एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। तो समझ में आ गया बेटा कि जब प्लेटलेट्स डैमेज ब्लड वेसल की वॉल से अटैच होते हैं तो इन डैमेज टिश्यू से ये स्पेसिफिक कोएगुलेशन प्रोमोटिंग सब्सटेंस रिलीज होता है, जिसको थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। और बेटा ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होकर कहाँ आया, ब्लड प्लाज्मा में। और बेटा ब्लड प्लाज्मा में पहले से ही आपके सेवरल क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। अभी हमने डिस्कस किया था 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। मोस्ट ऑफ देम आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम लीवर एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा में पाए जाने वाले ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को ही हम यहां पर प्लाज्मा प्रोटीन्स भी कह रहे हैं बेटा। और ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, ये ब्लड में पाए जाने वाले फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर होता है बेटा इस कैल्शियम। कैल्शियम इज आल्सो वन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर, फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर। इसके साथ जब ये आपके अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स, मतलब कि प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम से जुड़ती हैं, तो बेटा एक कॉम्प्लेक्स बनता है, एक कॉम्प्लेक्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। मतलब कि इन प्लाज्मा प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है बेटा। उसी को आप थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं। ये जो थ्रोम्बोकाइनेज होता है बेटा, इसको एंटी हिपैरिन, ये कैसा नेचर का होता है, एंटी हिपैरिन। एंटी हिपैरिन का मतलब होता है इट इनएक्टिवेट द हिपैरिन। ये इनएक्टिवेट कर देता है। किसको इनएक्टिव कर देता है बेटा, हिपैरिन को। आखिर हिपैरिन कौन है बेटा, हिपैरिन वो सब्सटेंस है जो लीवर के मास्ट सेल से प्रोड्यूस होता है और ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। और बेटा इसी हिपैरिन के प्रेजेंस के कारण हमारा ब्लड जो है वो हमारे ब्लड वेसल में क्लॉट नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि ये हिपैरिन जो है ये प्रोथ्रोम्बिन, बेटा प्रोथ्रोम्बिन सेकेंड क्लॉटिंग फैक्टर है बेटा। और ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रो का मतलब होता है इनएक्टिव फॉर्म। तो बेटा जब तक आपके प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तब तक बेटा आपके क्लॉटिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो बेटा प्रोथ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन मतलब कि इनएक्टिव स्टेज में बनाए रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है हमारे ब्लड प्लाज्मा में, हिपैरिन। हिपैरिन हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन से अटैच रहता है, जिसके कारण प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। और बेटा जब तक आपके थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा। इसीलिए प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिव होना ब्लड कोगुलेशन के लिए जरूरी है। लेकिन इसको कौन एक्टिव नहीं होने देता, हिपैरिन हमारे ब्लड प्लाज्मा में। इसीलिए बेटा इसे एंटी कोगुलेंट कहते हैं। और ये नेचुरली हमारे ब्लड प्लाज्मा में लीवर से सिंथेसाइज होता है और पहुंचता है हमारे ब्लड प्लाज्मा में, इसीलिए हम इसे नेचुरल एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस कहते हैं। अब बेटा दूसरा स्टेप चालू होता है। जब थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम आ गया तो ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम अब बेटा हिपैरिन को प्रोथ्रोम्बिन से अलग कर देता है और अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन है इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है बेटा। तो थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है बेटा। एक बात यहाँ पर मैं और बता दूं बेटा कि क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम के साथ साथ विटामिन के की भी आवश्यकता होती है बेटा। ये जो विटामिन के है, ये विटामिन के नेसेसरी होता है आपके लीवर के द्वारा
डिफरेंट जो क्लॉटिंग एंजाइम्स है उनके सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है बेटा। जैसे कि ये जो थ्रोम्बिन है, इस थ्रोम्बिन बिना विटामिन के सिंथेसाइज नहीं हो सकती। नाउ द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड इज द कन्वर्शन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। तो अब बेटा ये जो फाइब्रिनोजन है ये तो पहला क्लॉटिंग फैक्टर है विच इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द लीवर एंड प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा। इसके ऊपर आपके थ्रोम्बिन एक्ट करता है और इसको हाइड्रोलिसिस के द्वारा सॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन बेटा ये फाइब्रिन सॉल्युबल होने के कारण आपके प्रोटीन के फाइबर्स का नेटवर्क नहीं बना पाते और बेटा ये आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या अदर जो प्लेटलेट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जो ब्लड के, उनको ट्रैप नहीं कर पाते, इसीलिए क्लॉट तैयार नहीं हो पाता। इसलिए जरूरी है कि ये इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम और 13 क्लॉटिंग फैक्टर, जिसे फाइब्रिनेज एंजाइम एक्टिव होता है और ये फाइब्रिन को सॉल्युबल फॉर्म से इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है बेटा। और ये इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ जो फाइब्रिन है ये एक फाइब्रिन प्रोटीन का नेटवर्क बना देते हैं, जिसमें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स और अदर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड गेट ट्रैप्ड। दैट इज कॉल्ड एज क्लॉट। हेंस the clotting takes place. Now, if this clot remains inside the blood vessel, then it is harmful. It is harmful. So, this clot is dissolved. Dissolved. कैसे डिसॉल्व होता है बेटा, देखते हैं। हमारे जब टिश्यूज डैमेज होते हैं बेटा, तो उस दौरान एक एंजाइम रिलीज होता है जो बेटा ब्लड प्लाज्मा में पहले से प्रेजेंट प्लाज्मिनोजन को, बेटा प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन का इनएक्टिव फॉर्म है, तो ये जो प्लाज्मिनोजन है ये भी बेटा लीवर से सिंथेसाइज होता है और हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। लेकिन ये प्लाज्मिनोजन जो है उसको प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देते हैं ये एंजाइम्स, जो कि बेटा आपके डैमेज्ड टिश्यू से रिलीज होते हैं। जब ये ब्लड वेसल डैमेज होती है तो उसके टिश्यू से रिलीज होते हैं और ये प्लाज्मिन जो है बेटा ये फाइब्रिन को सॉल्युबल प्रोडक्ट मतलब कि पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को बेटा फाइब्रिनोलाइसिस कहते हैं। तो इसीलिए बेटा आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मेंस्ट्रुअल ब्लड भी फीमेल में क्लॉट नहीं हो पाता, ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिन। अब बेटा ये जो क्लॉट हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं ब्लड क्लॉट की, ये बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है थ्रोम्बस क्लॉट, एक होता है एम्बोलस। बेटा स्टैटिक जो क्लॉट होता है, स्टैटिक क्लॉट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बस क्लॉट, जो कि ब्लड वेसल की वॉल से अटैच होता है। लेकिन बेटा जब ब्लड के फ्लो के कारण यदि ये ब्लड क्लॉट टूट जाए, डिटैच हो जाए और ब्लड प्लाज्मा के साथ फ्लो करने लगे ब्लड वेसल्स में, देन इट इज कॉल्ड एज मीन्स मोटाइल ब्लड क्लॉट इज कॉल्ड एज एम्बोलस एंड इट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज एम्बोलिज्म। ओके, सो स्टैटिक क्लॉट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बस, मोटाइल क्लॉट इज कॉल्ड एज एम्बोलस। बेटा ध्यान रखिएगा, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नीट में पूछा जा चुका है। चलिए बेटा अब हम ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं। बेटा जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो मेनली कई प्रकार के होते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट इन नेचर, बट 2 ब्लड ग्रुप्स आर मेन। एक एबीओ ब्लड ग्रुप है बेटा, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एंड अनदर इज RH फैक्टर और RH ब्लड ग्रुप। तो यहां पर हम इन 2 ब्लड ग्रुप की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, विच इज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। ये बेटा साइंटिस्ट का नाम भी आपको याद रखना है। बेटा अभी आरबीसी पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो सरफेस मेम्ब्रेन होती है, उस पर बेटा एबीओ सिस्टम के, एबीओ जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एंटीजेंस होते हैं, आइदर ए एंटीजन और बी एंटीजन। These antigens are called as agglutinogen and जैसा कि बेटा हमें पता है कि हर एंटीजन के अगेंस्ट में एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज बनती है ह्यूमन के बॉडी में, और बेटा इन्हीं एंटीबॉडीज को आप एग्लूटिनिन कहते हैं, एग्लूटिनिन। लेकिन जब
बेटा अपोजिट ब्लड ग्रुप किसी भी ह्यूमन में ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तो उस पर्सन के आरबीसी की सरफेस पर पाए जाने वाली जो एंटीजेंस होती हैं वो उस पर्सन के ब्लड में पाई जाने वाली अपोजिट एंटीबॉडी से उस पर्सन में पाई जाने वाली एंटीबॉडी से क्लम्पिंग शो करती है। मतलब ये एंटीजन जब एंटर करेगा जो कि आरबीसी की सरफेस पर है रिसिपिएंट में, तो उस रिसिपिएंट के ब्लड में पाई जाने वाली इस एंटीजन के अगेंस्ट में पाई जाने वाली जो एंटीबॉडीज है वो इसके साथ इंटरेक्ट करेंगी इस एंटीजन के साथ, और बेटा इस इंटरेक्शन को क्लम्पिंग कहते हैं या इसको एग्लूटिनेशन कहते हैं। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को क्या कहेंगे? एग्लूटिनेशन। और बेटा ये जो एंटीजन्स और एंटीबॉडीज हैं दे बोथ आर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो केमिकल नेचर इनका कैसा है बेटा? चाहे वो एंटीजन हो चाहे वो एंटीबॉडीज हो, दोनों का ही केमिकल नेचर बेटा ग्लाइकोप्रोटीन है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि आप ब्लड ग्रुप को कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो बेटा हमेशा ध्यान रखना ब्लड ग्रुप फॉलोइंग 4 टाइप्स के हो सकते हैं। ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टाइप्स ऑफ एंटीजेंस ओवर द सरफेस ऑफ आरबीसी। यदि किसी भी पर्सन की आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए होता है तो बेटा इस प्रकार के पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? ए ब्लड ग्रुप। यदि उसके आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा इस प्रकार के व्यक्ति का? बी ब्लड ग्रुप। लेकिन यदि किसी पर्सन में आरबीसी की सरफेस पर दोनों एंटीजन होते हैं ए और बी दोनों, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा? ए और बी बोथ। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के आरबीसी की सरफेस पर ना ए एंटीजन हो ना बी एंटीजन हो बेटा, तो फिर इस प्रकार के व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप कहलाता है। लेकिन यहां पर बेटा एक चीज जरूर ध्यान रखना, किसी भी पर्सन में यदि उसकी आरबीसी पर ए एंटीजन है तो बेटा उसके ब्लड प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी कभी भी पाई नहीं जाएगी, वरना ये इस आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देती। इसीलिए जिस व्यक्ति के ब्लड में आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन होता है उसके ब्लड प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं? एंटीबॉडी बी। और बेटा जिसके आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन बी है उसके ब्लड प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं? एंटीबॉडी ए। लेकिन बेटा ये बताओ कि क्या ए बी ब्लड ग्रुप पर्सन के ब्लड प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज होंगी? नहीं। अगर एंटीबॉडीज होती तो बेटा वो इसके साथ इंट्रैक्शन शो करती, एग्लूटिनेशन शो करती और ये आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती। इसीलिए बेटा ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के प्लाज्मा में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज नहीं होती। सो एंटीबॉडीज आर एब्सेंट इन ए बी ब्लड ग्रुप, एंटीजेंस आर एब्सेंट इन ओ ब्लड ग्रुप। दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन बेटा ओ जो ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है उसमें ना ए एंटीजन है ना बी, इसलिए इसमें दोनों प्रकार के आपके एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो सकती हैं और होती हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी इमरजेंसी अवस्था होती है, जब बहुत आवश्यक होता है ब्लड को डोनेट करना, आवश्यक होता है ब्लड किसी भी पर्सन के लिए, तो उस दौरान हम किसी भी व्यक्ति में ओ ब्लड ग्रुप जो है हम डोनेट कर सकते हैं। इसीलिए बेटा ओ ब्लड ग्रुप वाले को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और इसको डोनेट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उसके ब्लड ग्रुप में, ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के आरबीसी की सरफेस पर ना बेटा एंटीजन ए है और ना एंटीजन बी। ठीक है, तो यहां पर बेटा ये डोनर्स ग्रुप दिया हुआ है जिससे ये आपके ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ब्लड को ले सकता है। तो बेटा ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए से ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। इसी प्रकार से बी वाला बी से ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। लेकिन ए बी वाला बेटा सभी से ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि उसके ब्लड में, ब्लड प्लाज्मा में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज नहीं है, तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन नहीं होगा। लेकिन बेटा ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल ओ से ही ब्लड ले सकता है। ठीक है, इसका मतलब ए बी ब्लड ग्रुप पर्सन क्या कहलाएगा बेटा? रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। और बेटा ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल डोनर। इट इज डोनेटिंग।
ओके, अब चलिए हम दूसरे पार्ट पर चलते हैं, जिसका दूसरे ब्लड ग्रुप को स्टडी करते हैं, जिसका नाम है बेटा RH फैक्टर और RH एंटीजन. This RH antigen is also present over the surface of RBC. It is first discovered in rhesus monkey by Landsteiner and Wiener. Hence, it is named as RH factor. RH stand for rhesus monkey. बेटा कुछ कंसेप्ट अपने दिमाग में यहाँ पर बैठा लें. एक डिसऑर्डर अभी हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, उसमें ये कंसेप्ट हेल्पफुल होंगे. जैसे कि RH फैक्टर एक डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. मतलब यदि मेल या फीमेल के गैमेट में से किसी में भी RH फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल या RH एंटीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स होते हैं, तो बेटा ये ऑफ स्प्रिंग में एक्सप्रेस होगा. इसका मतलब यदि पेरेंट या दोनों पेरेंट में से किसी भी एक पेरेंट में RH एंटीजन है तो बच्चे में RH एंटीजन होगा. इसका मतलब बच्चा हमेशा RH पॉजिटिव होगा यदि पेरेंट में से किसी में भी अगर RH एंटीजन है. बेटा सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि हम RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल कब करते हैं. बेटा जब किसी भी पर्सन के RBC की सरफेस पर RH एंटीजन होता है तो हम उसे RH पॉजिटिव कहते हैं, और यदि एब्सेंट होता है RH फैक्टर तो हम इसे RH नेगेटिव कहते हैं. तो ध्यान रखना RH फैक्टर एक डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ठीक है, क्लियर हो गया बेटा. दूसरा एक और चीज याद रखिएगा, ये जो RH फैक्टर है बेटा, ये अगर हम पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में इसकी मात्रा देखें, पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में, तो बेटा पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में इंडिया में 97% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो बेटा RH पॉजिटिव है. मतलब उसकी RBC की सरफेस पर RH एंटीजन है. और 3% पॉपुलेशन इंडिया में RH नेगेटिव है. लेकिन वर्ल्ड में 80% RH पॉजिटिव है और RH नेगेटिव की संख्या 20% है. बेटा एक और कंसेप्ट मैंने ध्यान रखने के लिए कहा था, वो हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा. जो RH, जैसे अभी हमने देखा था कि आपके ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में A और B एंटीजन के अगेंस्ट में पर्सन में A या B एंटीबॉडीज होती हैं. लेकिन बेटा यहाँ पर RH एंटीजन के अगेंस्ट में कभी भी किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज नहीं होती. ये जरूर ध्यान रखें. ठीक है बेटा. नो एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट अगेंस्ट द RH एंटीजन इन द ब्लड प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन. यहां बेटा एक बात और विशेष ध्यान देने वाली है. यदि if the RH positive blood is transfused to RH negative, then first blood transfusion is completely successful. ठीक है बेटा. यदि एक व्यक्ति RH पॉजिटिव है और वो एक RH नेगेटिव को ब्लड ट्रांसफ्यूज करता है, और बेटा दे सकता है कि नहीं, तो आप कहोगे दे सकता है, क्योंकि बेटा RH नेगेटिव में RH एंटीजन तो है ही नहीं. तो पहली बार तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव को. लेकिन बेटा जब दूसरी बार RH पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है वो इस RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता. क्यों? क्योंकि जब पहली बार ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ था तो ये RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति से RH एंटीजन उस RH नेगेटिव वाले व्यक्ति में पहुंच गई थी, और उसके अगेंस्ट में उस रिसिपिएंट के ब्लड में RH एंटीजन के अगेंस्ट में RH एंटीबॉडीज बन गई थी. इसीलिए दूसरी बार जो ब्लड ट्रांसफ्यूशन है वो RH पॉजिटिव व्यक्ति RH नेगेटिव को नहीं दे सकता. बेटा इसी RH फैक्टर से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है जिसे हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार बेटा रिपीट हो चुका है. इसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं, या इसे हीमोलाइटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं. बेटा नाम ही है बेटा हीमोलाइटिक, मीन्स हीम मतलब ब्लड RBC, लाइटिक मतलब लाइसिस मीन्स तोड़ना, मतलब RBC रप्चर होती है. इसे बेटा ऐसे समझने की कोशिश करें. बेटा कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि किस प्रकार के मेल और फीमेल के बीच में मैरिज प्रोहिबिटेड होती है. तो आप कहेंगे RH पॉजिटिव मेल एंड RH नेगेटिव फीमेल के बीच में मैरिज प्रोहिबिटेड होती है. और बेटा ऐसा क्यों, जरा देखें. यदि एक RH पॉजिटिव
मेल है और एक RH नेगेटिव फीमेल है, तो बेटा जब इन दोनों की शादी होगी और इनका जब पहला बच्चा होगा, द फर्स्ट चाइल्ड दैट मस्ट बी RH पॉजिटिव। मैंने अभी कहा था ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो हमेशा बच्चा कैसा होगा बेटा इनका, RH पॉजिटिव। अब जरा देखिए, जो फर्स्ट बच्चा होगा इनका वो नॉर्मल होगा, मतलब फादर कैसा बेटा, RH पॉजिटिव, और मदर कैसी है, RH नेगेटिव। तो बच्चा कैसा होगा बेटा, RH पॉजिटिव। और मैंने आपसे अभी क्या कहा, इन दोनों के बीच में शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर शादी हो जाती है तो उस केस में हम ये कंडीशन देख रहे हैं, तो क्या होगा, क्या खतरा है इसका। तो बेटा इस प्रकार का बच्चा RH पॉजिटिव होगा। अब जरा देखिए, आपको पता है शायद कि मदर और जो फीटस होता है बेटा, उसको उसके बीच में मदर और फीटस, या आप ये कहें जो फीटस है ना, मदर और फीटस के बीच में एक कनेक्शन होता है न्यूट्रिटिव, जिसे आप प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, तो बेटा जब बर्थ होता है इस फर्स्ट चाइल्ड का, तो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन ये जो प्लेसेंटा होता है बेटा, ये रप्चर होता है, और इस प्लेसेंटा के रप्चरिंग से बेटा मदर और फीटस का जो ब्लड होता है उसकी मिक्सिंग होती है। तो फीटल ब्लड मदर के ब्लड से मिक्स हो जाता है। लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, प्लेसेंटा कभी भी बेटा मदर और फीटस के ब्लड को मिक्स नहीं होने देता। लेकिन बेटा ये ह्यूमन के पार्चुरेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जब भी ह्यूमन का पार्चुरेशन होता है, ह्यूमन में पार्चुरेशन होता है, बर्थ होता है चाइल्ड का, तो उस दौरान प्लेसेंटा की रप्चरिंग के दौरान, प्लेसेंटा रप्चर होता है पहली बात तो, और प्लेसेंटा की रप्चरिंग के दौरान जो फीटल ब्लड होता है बेटा, ये मैटरनल ब्लड के साथ में, मदर के ब्लड के साथ में मिक्स हो जाता है, जिससे कि इस फीटस में बेटा, ये इस फीटस का ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव। इसका मतलब इसके ब्लड में क्या है, एंटीजन, RH एंटीजन। ये RH एंटीजन अब किस में चला गया बेटा, मदर में, मदर के ब्लड में। मदर के ब्लड में जाने के बाद बेटा ये RH एंटीजन जो है, इस RH एंटीजन के अगेंस्ट में मदर में क्या बन जाएंगी, RH एंटीबॉडीज। RH एंटीजन के अगेंस्ट में RH एंटीबॉडीज बन जाएंगी। लेकिन यदि बेटा ऐसी मदर में 72 आवर्स के भीतर यदि हम एंटी डी दे दें बेटा, एंटी डी कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि हमने पहले से बाहर आर्टिफिशियली तैयार करके रखी हुई हैं। इन एंटीबॉडीज़ को यदि मदर में इंजेक्ट कर दें 72 घंटे के भीतर डिलीवरी के बाद, तो बेटा इस मदर में ये एंटीबॉडीज़ जो हैं, ये RH एंटीबॉडीज़ हैं बेटा, जो आर्टिफिशियली हमने तैयार की हुई हैं। इसको इंजेक्ट करने पर मदर के ब्लड में जो एंटीजन्स, RH एंटीजन्स इस फीटस के ब्लड की मिक्सिंग से मदर में पहुंचे थे बेटा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और इस RH एंटीजन के अगेंस्ट में मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाएंगी। लेकिन बेटा ऐसा ना हो पाने पर, यदि ऐसा ना हो, और ऐसा नॉर्मली होता भी नहीं है, तो यदि ऐसा ना हो तो क्या होगा, तो बेटा इस मदर में पहले से ही ये जो इस मदर में अब इस RH एंटीजन के अगेंस्ट में बेटा RH एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। अब इन दोनों का अगर दूसरा बच्चा पैदा होता है तो बेटा दूसरा बच्चा भी आपके RH पॉजिटिव होगा, बट ऑब्वियस है। और RH पॉजिटिव है, इसका मतलब इसमें RH एंटीजन है इसकी RBC की सरफेस पर। अब बेटा ये जो प्लेसेंटा होता है, इस प्लेसेंटा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इस प्लेसेंटा से आपके एंटीबॉडीज़ डिफ्यूज़ होकर फीटस में आ सकती हैं। तो बेटा मदर के ब्लड में इस RH एंटीजन के अगेंस्ट में क्या बन चुकी हैं, एंटीबॉडीज़। तो बेटा ये एंटीबॉडीज़ मदर के ब्लड से, प्लेसेंटा से डिफ्यूज़ होकर चाइल्ड के डेवलपिंग फीटस के ब्लड में पहुंच जाएंगी, और डेवलपिंग फीटस के ब्लड में बेटा RH एंटीजन है, और ये RH एंटीबॉडीज़ इस RH एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगी, और इस तरीके से इस डेवलपिंग जो सेकंड चाइल्ड है, इसके फीटल स्टेज में ही RBC लार्ज स्केल पर बेटा डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इसीलिए हमने इसको हीमोलाइटिक डिसऑर्डर कहा था बेटा, और इसी कंडीशन को बेटा आप इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहते हैं। ठीक है, तो बेटा इस डिसऑर्डर के साथ हम यहाँ पर इस ब्लड के पार्ट को ख़त्म कर रहे हैं, और इसके बाद हम ये आशा करते हैं कि आपने